നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആരുമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ആവശ്യപ്പെട്ട തുക വലുതായത് പൈസ പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കും. അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്യാഷും പിന്നെ എന്നെയും. उसका हस्बैंड कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है. कल कैसे बोल रहे थे എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ സെഡ് യെസ്. ഇനി അവർ തന്നെ വിളിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. कौन होगा किडनैपर? क्या पता पैसे मांग रहा होगा. जैसे बोल रहा था ना कि किडनैपर मेरी और पैसों की डिमांड कर रहा है. नहीं तो इसकी डिमांड क्यों करेगा किडनैपर? അക്കന്മാരെ പോലെ കറങ്ങുന്ന ആ രണ്ടുപേരെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ താൻ വിവരം അറിയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. ഒരു ജീവനല്ല, 2 ജീവൻ. अच्छा ये इसको बुलाएंगे. ഭയമുണ്ടല്ലേ? ചുറ്റിനും പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി എത്ര കാലം രക്ഷപ്പെടുന്നു? തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ മരണം നിങ്ങളെ തേടി വരും. मुझे लग ही रहा था फिलिपी हो गया. തന്നെ അവൻ എന്നോട് ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാനാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ യാത്രകൾ അവൻ ഫോണിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മീറ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ ആസ്പദമായ രീതിയിൽ കറങ്ങുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം. इतनी महंगी गाड़ी ले ली उसने हैं? अच्छा अच्छा ये तो उसका इसमें पति तो है. ഇത്തരൊരു ഹീറോയിസം കാണിക്കും. പണം കൈമാറി കുട്ടി സേഫാണെന്ന് അറിയുന്നവരെ ആരും ഒരു സാഹസത്തിനും മണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കട്ടെ. സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. फॉलो कर रहा है उससे. अच्छा चर्च में बुला रहा है. ഞായറാഴ്ചകളിൽ കുർബാന കൈക്കൊള്ളാൻ വന്നിരുന്നത് അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഓർമ്മ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കീപ് മൂവിങ്. ആദ്യമായി നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് ഇത്തിരി നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു. നമ്മളെങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ തളർത്തുകയാവും. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ, വെല്ലിംഗ്ടൺ റോഡ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ അപ്പനമ്മയും. अच्छा एक्सीडेंट हुआ था. सारी बातें याद दिला रहा है. करें Now shift the gear. मुझे पता है कहाँ कहाँ जा रहा है वो शायद. इतना तेज तरीके से गाड़ी चलानी है. Actually, you do. The only choice I offer you, that's to shut up and do exactly what I ask you to do. കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊല്ലും. इधर हो गया. दूसरी पुलिस गाड़ियाँ आएंगे पीछे लाइन लाइन खड़ी होगी थोड़ी दूर पे. अच्छा गाड़ी घूमने लगी उसके चारों ओर. इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई वहाँ. अब निकाल देंगे इसे. निकाल दिया रुपया.
Come on, sir. Go, come on, fast. चल भी थी उसमें। बहुत अच्छा लग रहा हुआ है। रोक दिया। अभी तो कोई और है। ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നത്തെ കാശോടെ ഞങ്ങളെ കാശൊന്നുമില്ല സാർ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത്? സാർ അതേതൊരു ബായ് വന്ന് डस्टबिन के पास घूमने के रुपए। നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്? സാർ സാറല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല, ഡെറിക്കിനെ. അവനോടെ സാർ ഡെറിക് സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് പോയി കിട്ടും. चोरी किडनैप कर दिया साहब से। ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പാലെ തീ പിടിച്ച പോലെ ഓടുമ്പോ താൻ അവിടെ അല്ലേ? അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞ്. മാഡം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അത് താനെന്താ ആളെ കളിയാക്ക്? സാർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുതൽ പറയാം. സാറിന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ദിനേശ് സാറിന്റെ മകനെ ജയിലിലാക്കിയ ഡെറിക് സാറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പക. അവന്റെ കോപ്പിലെ കഥ. लवर थी। ഇവിടെ കൊച്ചിനെ കിട്ടാതെ മനുഷ്യൻ ഫിലിപ്പ് അബ്രഹാമിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കൊലപാതക കുറ്റം. സ്വന്തം അനുജനായാലും നീതി പുലരണം. അതേടാ ഞാനാ ജയിലിൽ അടിച്ചത്. നിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്തോ ചെയ്യും? അയ്യോ, എന്റെ തെളിവ് ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല. ഫിലിപ്പ് അബ്രഹാമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ അവൻ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുക. इसे पता कैसे लगा? यार बच्चे पता नहीं। सब गाड़ी के पीछे करते हुए पहुंचे हुए हैं ना। अरे काले जाने। गन निकाल दो उसने। അത്ര ഉറപ്പ്? കാരണം സാറിന് അറിയാം, ഡെറിക് സാർ എവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉവ്വ. അവന്റെ നമ്മളെല്ലാം പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ്. You killed my brother. It's paper. Oh. I'm not bad with hands. अलग कर दी हैं? गोली भी निकाल दी। तो हैरान हो गए। इनमें कौन चला रहा गोली? जिसका भाई इसी के साथ है। हैं? मतलब ये दोनों कर क्या रहे हैं? समझ नहीं आया। वो तो पहले से मारना चाहता था, अब दोनों साथ में कैसे आ गए? बच्चे को बचाने के लिए आ रखे हैं दोनों ना। कैसे जरूर അപ്പൊ പണം മാം, ആ പണം ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? അല്ലടോ, അത് ആ വണ്ടിയിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും. അത് ഡെറിക് സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആകപ്പാടെ ചെക്ക് ചെയ്തത്. बबर के पास तो नहीं आ गया रुपए। अच्छा अच्छा, उसने उनसे ये बोला कि പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ജയിലിൽ ചാടിയ കഥ അവിടെയും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഡെറിക്കിന് വെടിയേറ്റത്? കാര്യമായ ഇഞ്ചുറി തനിക്കേക്കാതെ അനിയനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം ചേട്ടൻ. अच्छा तभी तो मैं बोल रहा कि उसने हाथ पे क्यों मारी गोली नहीं? अभी तो मिले हुए थे आपस में. വ്യക്തമായി കോറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത ഒരു നാടകം.
ഇത്രയും നല്ല ഷൂട്ടറായ ഡെറിക് സാറ് അന്ന് തന്റെ അനിയന് നേരെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഷൂട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം സൂചനകൾ നൽകിയത്. അരുണിന്റെ ബോഡിക്കടുത്തും അതേ ടയർ പ്രിന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. ഫിലിപ്പ് വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്ന तो उन सबको मारा इसने ना, ये जो मिले थे उसको भी मार देता है. तो उसके पीछे पड़ता था और फिर ये मतलब वो उसके इसी के पास लेकर आता था एक तरह से उसे, और फिर ये तब ये उसे मार देता था. जेल तो हुई थी इसके भाई को ना, बाद में साथ में आई है. सच्चाई അരുണിന്റെ ബോഡിക്ക് അരികിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഡെറിക് സാറിന് അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം സാറിന്റെ ഷൂസിന്റെ പ്രിന്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. സാറ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നിന്റെ പ്രിന്റായിരുന്നു അത്. അത് ഫിലിപ്പിനെ കൊണ്ട് സാറ് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു നമ്പരായിരുന്നു. പഴയ ഓർമ്മകളിലൂടെ सेम कार में थे. ഈ സമയം അവർ യഥാർത്ഥ കിഡ്നാപ്പേഴ്സിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, ഒളിപ്പിക്കൂ ഈ ഫിലിപ്പിനെ. ഡെറിക് സാറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി ഐസക് സാർ വിക്ടിം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഐബിക്കും റോയ്ക്കും സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാർ. അപ്പോ ഓമ്പിച്ചു അല്ലേ? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഡെറിക് സാറിനെ കാണുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഡെറിക് സാറിന്റെ പക്ഷത്താണ്. നിയമം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചപ്പോ എല്ലാം അവന്റെ ആളുകളാ, നാറികൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ. वापस से देखना चाहिए. दोनों साथ में नहीं जा रहे. इसी की बात कर रहा हो? ओह हाँ, मतलब है ये भी पुलिस में. ഇവിടെയുള്ള കുറുക്കന്മാരുടെ കണ്ടുപറ്റിച്ച് ये पुलिस आ गई, पकड़ा गया ये. ഫിലിപ്പ് എവിടെ? അപ്പൊ പോയി കണ്ടേച്ച് വന്നാൽ മതി. पुलिस आ गई. वापस आ गया तो तुम रुपए का क्या किया हुआ इसने? കേട്ടോ സാറേ, करता सही इस्तेमाल किया. വീഴ്ത്താൻ ചോര കുടിക്കുമ്പോൾ കൊതുകിനെ ആരും തലോടി വിടാറില്ല. तो इसलिए കൊതുകിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചതുപ്പില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. और पुलिस को घुमाया उसने. ഡെറിക് അബ്രഹാം തിരികെ സർവീസിലേക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുത്തും തന്നെ പണി. അന്ന് തലകുനിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. അഹങ്കാരം തോന്നുമ്പോ സ്വയം വലിയ ദൈവനിഷേധികൾ ഇനിയുമുണ്ട്. നിങ്ങളും ഞാനും തിരഞ്ഞത് എന്നെ ഭ്രാന്തനെന്ന് മുദ്രകുത്തും. എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നിയമം ഇവിടെ ഇല്ല. എൻ്റെ
अच्छा इसी में हो गया ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. अच्छा इसी में मारा गया. इसी ने लिखा था ये. क्या सभी मतलब में ऐसे लिखता था ये? मतलब माबूटी इस समय तो उसे नहीं लिखा ना, लेकिन जो पहले लिखता था वो क्रिमिनल लिखता था ना ये सब चीज़ें. तो यहाँ पर एक फिल्म खत्म होती है और बहुत कमाल की फिल्म थी. काफ़ी अच्छी फिल्म थी. पहले तो मुझे लगा कि ये केवल वैसे एक क्राइम फिल्म है ऐसा लगा रहा था पहले. हाँ ये बहुत सीरियस और एक टाइम थ्रिलर फिल्म होगी. हाँ और जिसमें जो स्टार्टिंग में जो दिखाया गया वो केस जो मतलब लोगों को मारता था, जो लोग नास्तिक होते थे. तो मुझे यही लगा कि अब इसी को ढूंढते रहेंगे पूरी फिल्म में. और इसी में मतलब ये फिल्म की कहानी होगी सब कुछ. पर वो एक छोटा सा केस था और उसको उसने पकड़ भी लिया था. और फिल्म की मेन कहानी तब स्टार्ट हुई जब उसके भाई को दिखाया गया. फिर किस तरह से उसका भाई जब अरेस्ट हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के इल्ज़ाम में, तो वहाँ से मतलब एक नई कहानी शुरू हुई. और मतलब वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती गई जैसे फिल्म आगे बढ़ी. और आखिर में तो मतलब सब कुछ चेंज हो गया था. काफ़ी कुछ मतलब बदल गया था जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. और ख़ासकर ये तो बिल्कुल नहीं किया था हमने एक्सपेक्ट कि उसके दोस्तों ने ही मारा होगा उसकी गर्लफ्रेंड को. जिस तरह से वो कह रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसके दोस्त मतलब इनोसेंट ही होंगे. और इसके दोस्तों को जैसे कह रहे थे कि वो उन्हें कुछ नहीं था पता और उनके साथ नहीं था फिलिप. हाँ उसके बाद से ऐसे ही लग रहा था कि वैसे इसके भाई नहीं किया. जो भी बता रहे थे वो चीज़ें भी सब कुछ इसके भाई ने की. भले उसने ड्रग्स लिया था और नशा किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया. पर मुझे एक चीज़ ये भी लग रहा था डाउट कि जिस तरह से उसने बताया नहीं ना, उसने खुद नहीं कहा अपने मुंह से कि मैंने ये सब किया है. बेवकूफ़ नहीं था वो. नहीं मतलब उसने ये बोला तो था कि मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. हाँ ऐसा कुछ बोला था. बाकी उसे याद नहीं था ना. हाँ बस इतना ही बोला उसने. लेकिन हाँ उसे याद भी कैसा रहता ना, नशे में था और वो नशे में था ना, वो लेट चुका था. वो तो सो गया था, उसे थोड़ा था कुछ पता. हाँ उसके बाद जो हुआ उसके दोस्तों ने किया. और उसके दोस्तों ने उसे बताया भी नहीं. हाँ डाउट इसलिए लग रहा था ना क्योंकि उसने तो अपने मुंह से बोला नहीं, मतलब कबूल नहीं किया ये सब. तो तब मुझे डाउट लग रहा था शायद ये हो सकता है इनोसेंट हो. और फिर बाद में वैसा ही हुआ और वो उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर उसके दोस्त ने किया था. और फिर कहानी और ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड तब हो गई जब आखिर में ये पता चला कि वो दोनों मतलब मिले हुए थे बब्बर और वो. और उन्होंने मतलब सब कुछ मिलके मतलब उसने ड्रामा किया था फिर ना कि वो अपने भाई से नाराज है नहीं, उसको मारना चाहता है. हाँ दोनों में झगड़ा हो गया. और मुझे लग रहा वो भी नाटक था. जो वो एक उसमें घुस गए थे वो एक शोरूम में है ना. हाँ मतलब पूरा जो भी वो करते रहे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सब वो ड्रामा कर रहे थे ताकि इन्हें शक ना हो बिल्कुल भी. और फिर मतलब उसने फिर अपने भाई को बचा लिया. और अपने भाई को वो बचा मतलब केवल इसी तरह से सकता था और कोई उसके पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वो केस दोबारा से रीओपन हो नहीं सकता था. और अगर रीओपन अगर वो हो भी जाता तो एक ही दोस्त था उसका जिसने कि सच बताया था और उसने भी सुसाइड कर लिया था. तो गवाही देने वाला बस एक ही था, बाकी वो जो दो थे उन्होंने तो गवाही देनी नहीं थी. तो
फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था ना कि वो उसे वहाँ से जेल से बाहर निकाले, और वही उसने किया फिर इस तरह से, और 10 करोड़ रुपए उसने उससे लिए। वो जो कह रहा था कि हमारे पास कहाँ से होंगे, तो मतलब दोनों मिले हुए थे पहले से। तो उन्होंने वो रुपये खुद ही रखे शायद अपने पास। उसने अपने भाई को दिए ना शायद रुपए, हाँ फिलिप को। फिर वो भाग्य था ना वहाँ से, उसकी गाड़ी में रखे ना उसे रुपए। हाँ दिखा रहे थे वो। तो मतलब फिल्म में जिस तरह की सस्पेंस हैं और जिस तरह की चीज़ें मतलब खुलती हैं जो हमने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वो चीज़ें काफ़ी मज़ेदार थी। और लेकिन शुरुआत का जो सीन था ना, वो जब एक क्रिमिनल मार रहा था उन फैमिलीज को जो वैसे थी, जो भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, तो वो मेरे हिसाब से फालतू का सीन था नहीं है, मतलब बेवजह का सीन था, उसका आगे स्टोरी से लेना देना नहीं था कुछ भी। हाँ मेन स्टोरी से तो कुछ लेना देना मतलब लेना देना था उसका, बस ये था कि एक केस दिखा रहा था बस, दो चार केस, 2-4 मर्डर किया उसने। उसके बाद फिर मर गया वो, उसके बाद फिर नई कहानी शुरू हो गई। तब जो बब्बर है उसके भाई की कहानी शुरू हो गई, उन दोनों की कहानी सुनो। नहीं पर लास्ट में जो उन्होंने दिखाया ना कि वो किस तरह से उसने उसको मारा, उसने खुद मतलब उसने नहीं की थी खुदकुशी। हाँ वो वही थोड़ा सा दिखाया है बस कि उसने खुद से नहीं की थी, बाकी कहानी उसके बाद कुछ और चली। कहानी तो कुछ और चली। नहीं मतलब उसके जरिए उन्होंने ये दिखाया ना कि वो क्रिमिनल्स को मार सकता है खुद भी, अगर उसे लग रहा है कि ये बच सकता है, इसे सज़ा नहीं होगी, तो वो खुद भी मार देता है। तो इस तरह का नेचर था उसका। तो वो ये चीज़ दिखाने के लिए शायद उन्होंने वो दिखाया था वो केस। मुझे लगा थ्रिलर फिल्म होगी है ना। हाँ लेकिन स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि बहुत सीरियस और क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी, लेकिन ऐसे नहीं निकली। एक एंटरटेनिंग और बाकी इन्वेस्टिगेशन थी इसमें काफ़ी। हाँ मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन और किस तरह से मतलब जो एक्शन है और उसमें एंटरटेनमेंट भी है, और फिर उसमें जिस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर आती है जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होती है उसको जानना। तो वो सब मतलब काफ़ी मज़ेदार था, और जो हमें लग रहा होता वो एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में कुछ और होता है। तो मतलब फिल्म में ये चीज़ अच्छी है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हाँ तो इसलिए फिल्म इंटरेस्टिंग बनती जाती है। बाकी कहीं कहीं एक्शन ऐसा लगे कि जैसे, हाँ एक्शन थोड़ा कहीं पे वैसा लग रहा था जैसे थोड़ा नाटक जैसा लग रहा था। हाँ जैसे ड्रामा में दिखाते हैं। हाँ जैसे ड्रामा में दिखाते हैं, मतलब वैसा नहीं था इसमें एक्शन, जैसे फिल्मों में प्रॉपर एक्शन होता है ना। हाँ उस तरह का एक्शन नहीं था इसमें। 2018 की फिल्म है ये, शायद इस वजह से हो सकता है मे बी। नहीं 2018 की होने की वजह से ऐसा क्यों होगा? ये पुरानी फिल्म में होता था ना थोड़ा सा टाइप का। नहीं पुरानी भी थोड़ा है, ये तो 2018 की तो है। मतलब क्या पता इसका बजट कम रहा हो, ये भी हो सकता है रीज़न। ऐसा भी पता नहीं क्या रीज़न है, पर ऐसा नहीं है कि 2018 में रिलीज हुई इस वजह से इसका एक्शन ऐसा नहीं है। इस तरह का एक्शन तो मतलब पुरानी फिल्मों में भी नहीं होता था। पुरानी फिल्मों में भी इससे अच्छा एक्शन होता था, जो 90s की हों या 2000 की भी हों, तो उनमें भी अच्छा एक्शन होता था। इसी फिल्म में था इस तरह का एक्शन ना, खासकर जो फाइट सीन थे वो थोड़ा वैसे दिखा रखे थे जैसे जो ड्रामा आते हैं सीरियल वगैरह उनमें दिखाते हैं जिस तरह की फाइट तो वैसे लग रही थी वो। बाकी तो फिल्म मतलब काफ़ी अच्छी है, और मतलब एक दिमाग लगाने वाली फिल्म है, और जो चीज़ें इसमें निकल के आती है बाद में, और धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है
तो मतलब फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। और इसमें जो मतलब एक्टिंग है ममूटी सर की, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हर फिल्म में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और बाकी जो भी अदर एक्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल किया है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। और मतलब ये कि फिल्म एंटरटेनिंग है, बोर नहीं करती और टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। बाकी इसकी लेंथ भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं दिखी मतलब ना। हाँ वो चीज़ सही लगी मुझे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आ रही थी, कुछ ज़्यादा खींचा नहीं गया था हाँ सीन को, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी लेंथ बना देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसे खींच देते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं था। और इसमें फटाफट हो रही थी ना चीज़ें, तो ऐसा कहीं पे बोर भी नहीं कर रही थी फिल्म। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।